हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पीबी शैली के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें से 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये पीबी शैली की सीरीज चल रही, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं 119 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। Which poem of P.B. Shelley contains this line, "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"? तो दोस्तों ये किस पोयम की लाइन है? तो ये लाइन है टू अ स्काईलार्क की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टू अ स्काईलार्क। दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। टू अ स्काईलार्क इज शेलीज पोयम. It is written in the spring of 1820. It represents Shelley's thought and style. This poem contains the famous line, "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought." Question number 27 is on your screen. Question number 27. Spring, rejuvenating powers of quickening, a new birth in Shelley's Ode to the West Wind, is first mentioned through the image of. दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लैरियन कॉल ऑफ द अज्योर सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस बताता चलूंगा और एक्सप्लेनेशंस भी। Spring's rejuvenating powers of quickening, a new birth in Shelley's Ode to the West Wind, is first mentioned through the image of clarion call of the azure sister that fills the hills and plains. Question number 28 is on your screen. The autumnal tone that Shelley wishes to replicate through his verse is. बताइए दोस्तों 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वीट दो इन सैडनेस। स्वीट दो इन सैडनेस। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द ऑटोमनल टोन दैट शेली विशेस टू रेप्लिकेट थ्रू हिज वर्ड्स इज स्वीट दो इन सैडनेस। क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑन योर स्क्रीन. The wild spirit in Ode to the West Wind is called destroyer and preserver because. destroyer और preserver क्यों कहा गया है Ode to the West Wind को? तो 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यों? It makes the existing leaves fall and keeps the seeds safe in wintry bed to sprout again in spring. C is the right option. The wild spirit in Ode to the West Wind is called destroyer and preserver because it makes the existing leaves fall and keeps the seeds safe in wintry bed in sprout again in spring. यहाँ पे दोस्तों एस बना हुआ है, सेफ है ये। क्वेश्चन नंबर 30 is on your screen. A defense of poetry is written by. A defense of poetry दोस्तों ये एक प्रोज वर्क है, ध्यान रखिएगा। ये पीबी शैली का है, ये कलेक्शन ऑफ एसेज है। पीबी शैली इज द राइट आंसर। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय पीबी शैली. इट इज एन essay written in 1821 and first published posthumously in 1840 in essays, letters from abroad, translations and fragments by Edward Moxon in London. It contains Shelley's famous claim that poets are the unacknowledged legislatures of the world. चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑन योर स्क्रीन. Shelley's The Sensei is an. तो दोस्तों सेंसाई क्या है?
बताइए आप लोग 31 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सेंसाई दोस्तों एक प्ले है, ध्यान रखिएगा, ये एक वर्स प्ले है। ऑप्शन ए प्ले इज द राइट आंसर। द सेंसाई इज अ वर्स ट्रेजेडी। The Sansai is a worse tragedy in 5 acts by P.B. Shelley, published in London in 1819 and first staged privately by the Shelley Society in 1886, modeled after Shakespeare tragedy. It is noted for its powerful characters, evocative language, and moral ambiguities. It is based on an incident in Renaissance Rome. Question number 32 is on your screen. I fall upon the thorns of life, I bleed. In which poem of Shelley does this line occur? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, बताइए 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ode to the West Wind is the right answer. Ode to the West Wind is an ode written by P.B. Shelley in 1819 near Florence, Italy. It was originally published in 1820 by Charles in London as part of the collection Prometheus Unbound. The line first fall upon the thorn of life, I bleed appears in this poem. Question number 33 is on your screen. Which of the following is mismatched? इनमें से कौन मिसमैच है? तो दोस्तों टू अ स्काईलार्क पीबी शैली का है, बाकी सभी क्या है, ये मिसमैच है। बाकी टू द स्काईलार्क ध्यान रखिएगा वर्ड्सवर्थ का है और टू अ स्काईलार्क पीबी शैली का है। तो मिसमैच ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। To a Skylark is a poem completed by P.B. Shelley in late June 1820 and published accompanying his lyrical drama Prometheus Unbound by Charles and James Collier in London. Question number 34 is on your screen. Question number 34. Which of the following statements is not correct with reference to P.B. Shelley? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? The unfinished work, The Triumph of Life, derived metrically and thematically from Dante and Petrarch. आप लोग दोस्तों इसके ऑप्शंस पढ़ लीजिए ध्यान से और 34 का बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस बता देता हूं। 34 का ऑप्शन नंबर बी, द सब्टल ऑफ एडोनिस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये अलास्टर का मतलब होता है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट नहीं है। Adonis, an elegy on the death of John Keats, written by P.B. Shelley in 1821. The Spirit of Solitude is the subtitle of Alastor. Question number 35 is on your screen. Question number 35. The death of John Keats was commemorated by Shelley in his elegy. तो जॉन कीट्स की डेथ पर शेली ने एक एलिजी लिखी थी, कॉमेमोरेट की थी। तो कौन सी? एडोनिस लिखी थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए, एडोनिस इज द राइट आंसर। एडोनिस इज शेलीज पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स. It is written in 1821. It has 55 Spenserian stanza of 9 lines each. It has 495 lines. तो दोस्तों ध्यान रखिएगा स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती हैं और इसमें टोटल 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा हैं। तो टोटल कितनी लाइनें हैं एडोनिस में? 495। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। Question number 36 is on your screen. The lyrical drama Hellas, written by P.B. Shelley, was basically
इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द ग्रीक वॉर ऑफ लिबरेशन। Hellas is Shelley's worst lyrical drama. It was written in 1821 and published in 1822. It was Shelley's last published poem during his lifetime. It is the outcome of Greek revolution against the Turkish Empire. So, P.B. Shelley was basically inspired the event of the Greek War of Liberation. Very important question. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell us of the saddest thought. तो दोस्तों ये टू अ स्काईलार्क की लाइन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू अ स्काईलार्क। The lines we look before and after and pine for what is not, our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell us of the saddest thought, are taken from To a Skylark written by P.B. Shelley. It is written in the spring of 1820. It consists of 21 stanzas of 5 lines each. Question number 38 is on your screen. Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love, which overflows her bower. 38 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टू अ स्काईलार्क इज द राइट आंसर। 38, ऑप्शन नंबर डी, टू अ स्काईलार्क इज द right answer. The lines like a high dash dash her bower are from To a Skylark written to P.B. Shelley. This poem was written in July 1820 and published with Prometheus Unbound in the same year. These lines describes about the skylark. Question number 39 is on your screen. As a poet dash contributed a new quality to English literature, a quality of ideality, freedom and spiritual audacity. तो 39 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीबी शैले हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एज अ पोएट पीबी शैले इज द राइट आंसर। As a poet, P.B. Shelley contributed a new quality to English literature, a quality of ideality, freedom and spiritual audacity. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। टोटल दोस्तों हम इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑन योर स्क्रीन। Prometheus Unbound was a poetic drama by which of the following poets? तो प्रोमीथियस अनबाउंड दोस्तों पीबी शैली का वर्क है, बी इज द राइट ऑप्शन। Prometheus Unbound is a poetic drama by P.B. Shelley. It is 4-act lyrical drama. ध्यान रखिएगा Prometheus Unbound में 4 act है। It is 4-act lyrical drama. It was first published in 1820. It is inspired by Promethea, which is attributed to Aeschylus. दोस्तों सेंसाई 5 एक्ट का है, ये भी ध्यान रखिएगा, और प्रोमीथियस अनबाउंड 4 एक्ट का है। क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओड टू स्काईलार्क की राइमिंग स्कीम क्या है? तो 41 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइमिंग स्कीम आपको बतानी है तो हो जाएगा ए बी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए बी बी इज द राइट ऑप्शन। राइम स्कीम ऑफ टू अ स्काईलार्क इज ए बी बी।
Ode to Skylark is a poem completed by P.B. Shelley in last June 1820 and published accompanying his lyrical drama Prometheus Unbound by Charles and James Collier in London. The poem consists of 21 stanzas made up of 5 lines each. The first 4 lines are metered in trochaic trimeter, the fifth in iambic hexameter, also called Alexandrine. The rhyme scheme of each stanza is A B A B B, या फिर आप A B A B B कह सकते हैं, A B A B B ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 जो ऑन योर स्क्रीन, टू सफर वोज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाई। टू सफर वोज विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाई 42 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? Shelley is the right answer. ऑप्शन नंबर ए, Shelley is the right answer. चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। Percy Bysshe Shelley gives an inspirational quotation talking about the value of love. To suffer woes which hope things infinite, to forgive wrongs darker than death or night, to defy power. These lines occur in Prometheus Unbound. It is a lyrical drama of 4 acts, Whitening 1819, published in 1820. तो यहाँ दोस्तों राइटनिंग होना चाहिए, वाइटनिंग नहीं, इसको राइट किया गया 1819 में। क्वेश्चन नंबर 43, लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास stains the white radiance of eternity until death tramples it into fragments. The above lines occur in। 43 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एडोनिस। एडोनिस इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। The above lines occur in pastoral elegy Adonis, an elegy on the death of John Keats written by P.B. Shelley for John Keats in 1821. It was written in Spenserian stanza. Question number 44 is on your screen. Which famous romantic poem begins with the line, "Hail to thee, blithe spirit, bird though never wert"? तो दोस्तों ये टू अ स्काईलार्क पोयम स्टार्ट होती है इन लाइनों से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क इज अ पोयम completed by Percy Bysshe Shelley, in short P.B. Shelley, in late June 1820. The poem is unconventional from features a song-line rhyme scheme and bouncy rhythm that subtly mimics the skylark's calls. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 is on your screen. Shelley was expelled from the Oxford University due to the publication of, तो द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के कारण इनको निकाला गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ड्यू टू द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इज एन essay on atheism by the English poet P.B. Shelley, printed in 1811, for which he along with his friend Thomas Hogg was expelled from Oxford. तो इनके फ्रेंड थॉमस हॉग को भी इनके साथ निकाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड? तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। In his poem Ode to the West Wind, Shelley says, if winter comes, can spring be far behind? It is an ode written in तर्जा रीमा। तो Ode to the West Wind दोस्तों तर्जा रीमा में लिखी गई है। तर्जा रीमा का मतलब होता है 3 लाइन्स स्टैंजा, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। 46 के बाद दोस्तों
कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। मैन इज अ बोस्टफुल क्रिएचर, दिस इज द थीम ऑफ वन ऑफ शेलीज वर्क। तो एज ओजीमेंडियस में ये बात कही गई। शेली वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डीड ऑल सेंग टुगेदर, हुज कमेंट इज दिस। तो ये स्विनबर्न का कमेंट है। हाउ मेनी कैंटोज डज द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम हैव, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम में 12 कैंटोज हैं। द सेंसाई हैज 5 एक्ट हैं सेंसाई में। ऑडिपस टायरेनस हैज 2 एक्ट्स हैं इसमें। हाउ मेनी पार्ट्स डज द सेंसिटिव प्लांट हैव, तो सेंसिटिव प्लांट में 3 पार्ट्स होते हैं। द सेंसाई इज अ ट्रेजिडी है ये, लेकिन कैसी ट्रेजिडी है, प्ले है, वर्स प्ले है, मीन्स ट्रेजिडी प्ले है, वर्स प्ले है। फ्रॉम वेयर डिड शेली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमीथियस अनबाउंड, तो अ प्ले बाय एस्चालस से इनको आइडिया मिला। द प्रोमीथियस अनबाउंड हैज 4 एक्ट्स, प्रोमीथियस अनबाउंड में 4 एक्ट हैं। I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers. Here is Shelley talking about the editors who destroyed the reputation of Keats. Find out the name of the reviews. तो द क्वार्टरली रिव्यू एंड द ब्लैकवुड मैगजीन के लिए शेली ने ये बात कही थी कि मैंने अपने पेन को आग में डुबा लिया है और उनके खिलाफ लिखूंगा जिसने मेरे फ्रेंड शेली की रेपुटेशन को बर्बाद किया है। द सीन ऑफ ओडिपस टायरेनस आर लेड इन थीबस इज द राइट आंसर। शेलीज एरियल टू मिरांडा वॉज इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, विच प्ले इज दिस। तो दोस्तों द टेम्पेस्ट। वॉट इन्फ्लुएंस शेली मोस्ट, पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन। शेलीज मास्क ऑफ एनार्की इज अ सटायर है ये। विच पोयम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, तो द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड या अलास्टर। द नरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस इज, तो मिस्ट्री एंड सस्पेंस की नरेटिव पोएम होगी द विच ऑफ एटलस। विच ईयर हैड बीन अ ईयर ऑफ हैपनिंग्स फॉर शेली, दिस ईयर वॉज ईयर व्हेन अलास्टर वॉज पब्लिश्ड। हैरियट डाइड एंड शेली मैरिड, तो ये दोस्तों कौन सा, शेली मैरिड मैरी गॉडविन से शादी की थी जो कि गॉडविन की बेटी थी 1816। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम विच वॉज बेस्ड अ रिवोल्यूशनरी थीम केम आउट ऑन January 1st, 1818. It was written in Spenserian stanzas. The original title of book was Leon and Sithna was the original title. Adonis is in Spenserian stanza में है Adonis. Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds who said, ये शेली ने कहा। He lives, he wakes, its death is dead, not he. अकर इन, ये दोस्तों शेली ने कीट की डेथ पे एडोनिस में कहा। विच बुक इज बेस्ड ऑन गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस, तो क्वीन मैब 1813। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस टर्जा रीमा, 47 इज ऑन योर स्क्रीन। तो टर्जा रीमा मैंने आपको भी बताया था कौन सी पोएम टर्जा रीमा है, टर्जा रीमा में लिखी गई है तो टू द वेस्ट विंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, Ode to the West Wind is the right answer. Tarja Rima is a stanza of 3 lines or tercets rhyming A, B, A, B, C, B, C, D, C. Out of the options, P.B. Shelley's Ode to the West Wind uses Tarja Rima, hence option B is correct. दोस्तों 3 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 48। Teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now. Whose lines are these? To whom are they addressed? तो ये किसकी लाइनें हैं और किसको एड्रेस्ड हैं? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों ध्यान से।
और आप लोग इसमें बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेली टू अ स्काईलार्क, तो ये सेली की लाइनें हैं और टू अ स्काईलार्क में लिखी गई हैं। इन द अबव लाइन्स पीबी सेली इज एड्रेसिंग द स्काईलार्क इन हिज पोएम टू अ स्काईलार्क 1820, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 क्वेश्चन और दोस्तों बचे हैं। पीबी सेलीज जूलियन एंड मडालो 1818 is a conversation between Julian and Count Madalo. Who do these two characters represent? दोस्तों जूलियन रिप्रेजेंट करता है कीट्स को और मडालो किसको करता है, बताइए। मडालो किसको करेगा, आप लोग बताइए। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मडालो करता है दोस्तों बायरन को। तो जूलियन रिप्रेजेंट सेली एंड मडालो करता है बायरन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। जूलियन एंड मडालो अ कन्वर्सेशन 1818 to 1819 is a poem in 617 lines of enjambed heroic couplets by P.B. Shelley, published posthumously in 1824. The poem is inspired by conversation Shelley has with Byron in Venice in 1818. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास दोस्तों 50, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। द मास्क ऑफ एनार्की बाय शेली इज, आप लोग ध्यान से पढ़ के इसका उत्तर बताइए दोस्तों। 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, अ पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रिस्पॉन्स टू पीटरलू मैसाक्रे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द मास्क ऑफ एनार्की इज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम रिटन इन 1819 by P.B. Shelley following the Peterloo massacre of that year. In his call for freedom, it is perhaps the first modern statement of the principle of non-violent resistance. तो दोस्तों ये सेकेंड क्लास थी पीबी सेले पे। हमने क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक डिस्कस किया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक। थैंक यू वेरी मच।